ते मय्य पितया खिला चापले अर्भके दान्ते धृता क्रीडना के अनुवर्तिनी चक्रुः कर्पां यदयापि तुल्यदर्शनः शुशु शुशुष्माणे मुनयो अल्पभाषिणी. Amazing verse है. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. All right. Anyone wants to read? मैं रीड करता हूँ बाबूजी. In the Bhagavad Gita, the Lord says, all the Vedas are searching after me. Lord Sri Chaitanya says that in the Vedas, the subject matters are only three, namely to establish the relation of the living entities with the personality of Godhead, perform the relative duties in devotional service, and thus achieve the ultimate goal back to the Godhead. As such, Vedanta Vadis or the followers of the Vedanta indicate the pure devotee of the personality of Godhead. Such Vedanta Vadis or the Bhakti Vedantas are impartial in distributing the transcendental knowledge of devotional service. To them, no one is enemy or friend. No one is educated and or uneducated. No one is especially favorable and no one is unfavorable. The Bhakti Vedantas see that the people in general are wasting time in false sensuous things. Their business is to get the ignorant mass of people to re-establish the lost relationship with the personality of Godhead. By such endeavor, even the most forgotten soul is roused up to the sense of spiritual life and thus being initiated by the Bhakti Vedantas. The people in general gradually progress on the path of transcendental realization. So the Vedantavadis, initially the boy, even before he becomes self-controlled and was detached from childish sporting, etc. But before the initiation, he, the boy, become more and more advanced in discipline, which is very essential for one who wishes to make progress in the line. In the system of Varnasam Dharma, which is the beginning of actual human life, small boys after 5 years of age are sent to become a brahmachari at the Guru's ashram, where these things are systematically taught to every boy. But he is a king's son or the son of an ordinary citizen. And the training was compulsory not only to create good citizens of the state, but also to prepare the boy's future life for spiritual realization. The irresponsible life of sense enjoyment was unknown to the children of the followers of the Varnasam systems. A boy was even injected with spiritual acumen before being placed by the father in the womb of the mother. Both the father and the mother were responsible for the boy's success in being liberated from the material bondage. Thus, thus, that is the process of successful family planning. It is to beget children for complete perfection. Without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in the following in the instruction of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go to back to the Godhead. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. All right. तो इसमें दो चीजें प्रभुपाद ने जो मेन इस वर्ष में आ रही हैं. One is impartial nature. So the impartial nature of the who are they were who? हमने देखा था ना कि लास्ट वर्ष में कि जो सेजेस आए हुए थे चतुर्मास में इन अ रेनी सीजन, they stay at one place. Otherwise, they were paramhans. They were parivrajakacharyas. They were wandering and preaching.
बट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो एक जगह पर रहते हैं, and they just stay there, and Narad Muni got a chance to serve them, right? So they were those sages, although they were impartial, and they are impartial by nature. अब ठीक है, तो ये डिस्कस होगा एक impartial nature, and second what we'll discuss is the qualities of Narad Muni. He's telling his own qualities, that he was self-controlled, no attachment for sports, right? Even though he was a boy, and he was not naughty, and he did not speak more than required, right? So these are the qualities which we'll discuss. ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोल रहे थे वो, क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स विदाउट बीइंग अकस्टम टू स्पोर्टिंग हैबिट्स। अब वो नारद मुनि उस टाइम पे 5 या 6 साल के बच्चे थे जो कि who were serving him. He was a boy, right? So small boy जिनका जो खेलते हैं, but he was not. Whereas if we compare it to ourselves, जैसे मैंने कहा कि if we put ourselves in that situation, then we'll be able to relish Bhagavatam much better way, right? तो अब नारद मुनि की जगह पे अपने आप को रख के देखो एज अ 5 year old बॉय, फॉरगेट अबाउट 5 year old बॉय, इवन नाउ अभी भी हमें होता है कि मेरे को तो खासकर मैं अपनी बात करता हूँ कि टेनिस खेलने जाना है या कुछ भी खेलना है या कहीं जाना है, तो वो अभी भी वो चीजें हैं हमारे स्पोर्टिंग हैबिट्स, मंडेन स्पोर्टिंग हैबिट्स, जिनका हमें भी पता है कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, स्टिल वी डू, राइट? हाथ दुखने लग जाता है, कमर दुखने लग जाती है, सब कुछ, और क्योंकि अब बॉडी तो नहीं साथ दे रही है, बट फिर भी इतनी ज्यादा एडिक्शन है क्रीड़ा की, स्पोर्टिंग की, कि वी डू इट, राइट? वेयर एज नारद मुनि, he is not accustomed to sporting habits. Why was that? Because of Dante. Dante पढ़ा है ना यहाँ पे, Dante. What is Dante? Having the controlled senses. His senses were controlled. अब सेंसेस कंट्रोल क्यों थी? वाई सेंसेस वर कंट्रोल, ये भी पूछ सकते हो कि भैया ऐसे क्यों क्यों था? बिकॉज ही गेव दैट आंसर, आई एम अल्पभाषिणी, मैं कम बोलता था, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अल्पभाषिणी, वन हु डज नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, तो उतना ही बोलो जितना चाहिए, और इतना बोलो जब भी बोलो कृष्ण कथा बोलो। महाराज बोलते हैं कि जब आप बोलते हो तो यू आर डिफ्यूजिंग योर भक्ति। आप अपनी, अगर जब आप इधर उधर की बात बोलते हो तो जितनी आपने भक्ति करके अपनी ऊर्जा इकट्ठी करी है, दैट डिफ्यूजेस, वो लीक हो जाती है, ठीक है? सो बेटर जब भी बोलो कृष्ण कथा बोलो, नहीं तो मौन, मौन व्रत रखते हैं ना कई कई धर्मों में, कौन रखते हैं? जैनी, जैनी रखते हैं आई थिंक, या कोई और रखते हैं, हाँ। तो हमारे में इस्कॉन में क्या बोलते हैं? मौन, मौन व्रत इज नॉट लाइक चुप हो जाओ, बोलो, यूज, भगवान ने दी है टंग बोलने के लिए दी है, कृष्ण कथा करने के लिए दी है, चैंटिंग करने के लिए दी है, यूज इट जुडिशियसली एंड ओनली फॉर कृष्ण कथा, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। उससे क्या होगा? when you do only krishna katha and you will not do prajalpa, what will happen? Sense control will happen, and जब sense control will happen, your energy will not go in sporting habits. Sporting habits can be anything, like अभी बच्चों के लिए toys हैं, for us we have different kinds of toys, right? We have mobile, we have TV, all those things. So all those things, what it is coming from is alpabhashini. From there, in this verse, as far as this verse is concerned, it is coming from there, alright? और क्या था जो में क्वालिटीज हैं? शुश्रूषमाने, शुश्रूषमाने मीन्स फेथफुली, जो सर्विस कर रहे थे फेथफुली कर रहे थे, और अनुवर्तिनी, ओबीडियंटली कर रहे थे। तो अब हम जब किसी की सर्व करते हैं तो वी समटाइम्स हैव वी माइट हैव, आई एम नॉट सेइंग कि वी माइट हैव समटाइम्स सम बैड इंटेंशंस कि अच्छा मैं यार इस बंदे को सर्व करता हूँ सो आई विल गेट समथिंग फ्रॉम हिम, राइट? कि मैं इसको सर्व करता हूँ बिकॉज ही इज रिच और ही हैज सम रिसोर्सेज और समथिंग सम सॉर्ट, राइट? बट फॉर एग्जाम्पल, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी एग्जाम्पल हैं इसकी।
अब दिति ने अपने, अभी भागवतम टेम्पल में भी एक टॉपिक चल रहा था कि दिति सर्व्ड हर हस्बैंड कश्यप मुनि so that she can get the benediction. उसने सर्व किया, कश्यप मुनि खुश हुए, उन्होंने बेनेडिक्शन मांगी, I want to kill Indra, I want to kill Indra. See, so she was, the whole intention of serving her husband Kashyap Muni was to get a benediction, which is to kill Indra. See, so that is why जब हम किसी को सर्व करते हैं, we should be obedient first of all and faithful without any other motive. कोई other motive नहीं होना चाहिए. तो वो बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों को they knew कि उसका कोई और मोटिव नहीं था. He was 5 साल का बच्चा वैसे ही मासूम बच्चा होता है ना, उसका इतना होता ही नहीं. So he's that is why they gave their mercy to him. राइट. अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है दैट इज इम्पार्शियल बाय नेचर. अब नारद मुनि ये क्यों बोल रहे हैं कि ऑल्दो दे वर इम्पार्शियल बाय नेचर दे ब्लेस्ड मी विद देयर कॉजलेस मर्सी. इस लाइन का क्या मतलब होगा, तो बताना जाएगा कि क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं हम इस लाइन से. ऑल्दो दे वर इम्पार्शियल बट दे ब्लेस्ड मी विद देयर कॉजलेस मर्सी. प्रभु जी, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं ना कि वो जो नारद मुनि जो ऋषि थे, जो जिनकी सेवा में चलती थी, तो उनका जो खाना बचता था वो सारा रेमिनेंट्स खाते थे, तो उसकी वजह से हाँ ऐसा बोल सकते हैं. हाँ, वो तो अभी आएगा. वो भी तो उस पे हम उस वर्ष, नेक्स्ट वर्ष है वो जो रेमिनेंट्स वाला है, उस पे तो हम अभी गए नहीं है. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो सेजेस थे, वो जो वहां पर आए हुए थे सेजेस, वो इम्पार्शियल बाय नेचर. दे वर इम्पार्शियल. इम्पार्शियल मीन्स दे सी एवरीवन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. जब सबको सेम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो आप कि सब में परमात्मा है, देवर उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी इज द वन हु सीज गॉड इन एवरीवन, हु सीज परमात्मा इन एवरीवन. उसको लगता है कि यार एवरीवन इज सर्विंग, एवरीवन इज गुड. सो व्हाई दे गिव कॉजलेस मर्सी ओनली टू हिम. नारद मुनि को क्यों दी, राइट, कॉजलेस मर्सी. तो उन्होंने, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल. तो इसका आंसर दिया प्रभुपाद. क्या बोलते हैं कि जब भी उत्तम अधिकारी होते हैं दे कैनॉट प्रीच. उत्तम अधिकारी हैज टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी. तीन होते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी. वी हैव हर्ड दिस बिफोर, राइट. तो कनिष्ठ, वी ऑल आर कनिष्ठ अधिकारी. ठीक है. Neophyte devotees fight with each other, only consider Krishna, do not give any importance to other devotees, fellow devotees and all. Then comes the Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari is who can discriminate between good and bad, between a neophyte and a other devotee, who knows what to give to each other, what to give to other devotees. So a preacher has to be, Prabhupada बोलते हैं कि at least we should come to the level of Madhyam Adhikari, right. But there are some Uttam Adhikaris like Maharaj. जितने भी महाराज हैं, they are Uttam Adhikaris. So this is on the same platform. वो ऐसे देख के नहीं देते कि यार मैं इसको मैं कृपा इस पे करता हूँ, इस पे नहीं करता. मैं मितुल पे कृपा करूंगा, मैं निशांत पे नहीं करूंगा. नो नो, नॉट लाइक दैट. उन पे उनकी कृपा सब पे बराबर है. अहेतु की कृपा, राइट, कॉजलेस मर्सी. So that was the status of those sages जो वहां पर, जिनकी नारद मुनि सेवा कर रहे थे. तो जब कृपा, यहाँ पे we need to understand that topic very clearly कि कृपा जो होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में होती है. फर्स्ट इज विदाउट इम्पार्शियल, विदाउट लुकिंग एट द क्वालिटीज ऑफ द डिवोटी, कि आपकी क्वालिटी देखे बिना. अब जब ये भक्ति वृक्षा स्टार्ट हुआ, क्या हमने क्वालिटीज देख के ये नॉलेज दी? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ब्रिजेश प्रभु ने ये देख के दी, अच्छा भाई तू, तेरे में ये क्वालिटीज है, मैं तेरे को बताऊंगा. अच्छा तुम में नहीं है, तुम निकलो घर से बाहर. नहीं, सबको सेम नॉलेज मिली, सबको सेम प्लेटफॉर्म मिला, सबको सेम नॉलेज मिली. ऐसे जब मैंने भी भक्ति परीक्षा स्टार्ट किया, ऑल वी वर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म.
तो सबको सेम नॉलेज मिली, सेम प्रसादम मिला, विदाउट लुकिंग एट द क्वालिटीज। कोई मीट ईटिंग कर रहा है, वो भी बैठ के प्रसादम खा रहा है, वो भी लेक्चर सुन रहा है, कोई दारू पी रहा है, वो भी, किसी को, सो दैट वाज ऑन द फर्स्ट लेवल विदाउट लुकिंग एट द गुणा। तो वही नारद मुनि बोल रहे हैं कि वो तो इम्पार्शियल थे, तो उन्होंने अहेतु की कृपा सब पे करी, हम पे, हमारे घर आए, हम हमसे प्रसाद ग्रहण किया एंड वॉट एवर, राइट। तो सेकेंड इज गुणमयी कृपा। गुणमयी कृपा इज once you give that first level of mercy, then the other person reciprocates। तो फिर उसके भी गुण कुछ बाहर निकल के आते हैं। तो जब वो उसके गुण बाहर निकल के आते हैं, then he gives more kripa। So that is the second installment of the kripa। So that is why Narad Muni is now telling his own qualities कि ये qualities भी थी मुझ में, तो इसलिए मुझे फिर और कृपा दी उन्होंने। वो क्या दी वो नेक्स्ट वर्स में देखेंगे हम, कि उनको कृष्ण कथा की उन्होंने बेसिकली। नहीं तो वो आते हैं चुपचाप अपना खाते हैं, जो भी करते हैं अपना करके चले जाते हैं, बट दे गिव नॉलेज ऑफ कृष्णा। कृष्णा की, कृष्ण कथा की उन्होंने नारद मुनि के साथ। दे गिव हिम एक्स्ट्रा मर्सी बाय लुकिंग एट हिज गुण, राइट। तो बट what so this is what we should also learn, so we should also give। so the key takeaway point is that we should try to give our, जैसे मर्सी हमें मिली है, सेम लेवल ऑफ मर्सी वी शुड ट्राई टू गिव टू अदर्स एज वेल। ऐसा नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इसको मैं मर्सी दूंगा और ये मेरा दोस्त नहीं है तो मैं इसको नहीं दूंगा। नो, दैट शुड नॉट बी द केस। प्रसाद डालते हुए शुड बी इम्पार्शियल। सबको प्रसाद डालो, उतना ही पनीर उसको डालो, उतना ही पनीर उसको डालो। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट। तो अब नेक्स्ट जो है गुणमयी। गुणमयी में क्या था? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आगे एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि हाँ, पहले इसी की निर्गुण की एग्जाम्पल्स थी। कौन कौन सी? अपनी प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज, सॉरी, नहीं नहीं, वो नेक्स्ट में आते हैं। गुणमयी, गुणमयी कृपा। गुणमयी कृपा इज when you see some guna in others then you give the mercy। और उसमें कौन सी एग्जांपल आएगी? प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज ने प्रीच किया, राइट। शंड और अमर जो उनके यूनिवर्सिटी के, डेमोनिक यूनिवर्सिटी के एचओडीज थे, राइट, शंड और अमर। तो वो जाके प्रहलाद महाराज को पकड़ के लाते थे और उनको सारा वो इकोनॉमिक्स, आसुरिक, सारी आसुरिक विद्या देते थे। और प्रहलाद महाराज चुपचाप बैठे रहते थे कि हाँ, उनको शंड और अमर को लगता था कि हाँ ये तो पूरा हमने सिखा दिया है। वो जाते थे वापस हिरण्याक्ष के पास और बोलते थे देखो हमने इसको सब कुछ सिखा दिया है। और प्रहलाद महाराज क्या वापस जाके बोलते थे वहां पे? भागवतम, कृष्ण कथा, विष्णु, एवरीथिंग। तो वो हैरान रह जाते थे कि ये क्या है। और क्या होता था, जब शंड और अमर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज ब्रेक में, लंच ब्रेक में, अपने जो फेलो मेट्स थे, उनके जो क्लासमेट्स थे, उनको वो कृष्ण कथा करते थे। दे नेवर गेव कृष्ण कथा। उन्होंने कभी प्रीचिंग शंड और अमर को नहीं करी, बट दे गेव इट टू देयर फेलो क्लासमेट्स, जो कि अगेन दैत्य ही थे। सो दिस इज व्हाट प्रहलाद महाराज वाज अ उत्तम अधिकारी, बट ही केम डाउन टू द लेवल ऑफ अ मध्यम अधिकारी टू सी कि किसको देनी है कि किसको नहीं देनी, राइट। सो दैट इज द सेकंड लेवल, जो गुण देख के। तो उन्होंने, उनको पता था कि मैं शंड और अमर को प्रीच जितना मर्जी कर लूं उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो व्हाई नॉट गिव योर कृपा, गिव दैट टू वेयर, जहां पे उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आए, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल कौन सी थी? जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत महाराज कुछ नहीं बोलते थे। उनको अपना पिछला जन्म याद था हिरण का, उनको सिर्फ पिछला जन्म भी याद था चक्रवर्ती सम्राट का, भरत महाराज का। सो दैट्स वाई वो जड़ भरत के रूप में आए और उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनको मार रहा, घर से बाहर निकाल दिया, उनसे पालकी उठवाई। फिर रघुगुण महाराज की पालकी जा रही थी तो उन्होंने उठाई, तभी वो कुछ नहीं बोले, ठीक है। उनसे डांट खाई तब भी नहीं बोले, तब जाके, बट ये नहीं बोले कि उनको डांट पड़ रही है यहाँ महाराज से, बिकॉज ही सॉ, ही प्रीच्ड रघुगुण महाराज बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू कपिल मुनि's आश्रम। वो कपिल मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे थे।
So that is when he opened his mouth for the first time in his lifetime to preach him. That was his causeless mercy, right? So this is how this goes. और हमारे हमारे केस में क्या होता है कि अच्छा, अगर जब तक तो हमारी बात मान रहे हो तब तक तो ठीक है, तब तक तुम्हें हमारी कृपा मिलेगी। जिस दिन तुमने हमारी बात को ना बोला या जो हमने कहा नहीं किया, चलो भाड़ में जाओ, तुम्हें हमारी कृपा मिलनी बंद, जाओ किसी और के पास। दिस इज व्हाट वी आर, द पीपल अराउंड अस, right? So this is the key takeaway, that we should give it to all, and the one who reciprocates we should give even more, all right? तो अब नारद मुनि को मिली, एंड he does the same thing for the others. तो जैसी सर्विस, जैसा एटीट्यूड आपके साथ होगा, जैसी सर्विस आपको मिलेगी, जितना प्यार आपको मिलेगा, सेम चीज आप आगे दोगे। नारद मुनि को अहेतु की कृपा मिली सेजेस की, और नारद मुनि ने आगे कितने डिवोटीज बनाए, उन्होंने, और उन्होंने बिना गुण देखे बनाए। कोई एग्जांपल बताएगा मुझे जो बिना गुण, जिसमें कोई गुण नहीं था? जैसे प्रभुपाद ने जब दी कृपा तो उन्होंने हिप्पीज में गुण देखे, कोई गुण था उनमें? नहीं था। तो दैट वाज कॉजलेस मर्सी, निर्गुण, ऑन अ निर्गुण लेवल। ठीक है, प्रभुपाद को क्या बोले? आई मेड योर क्वालिफिकेशन, यू हैड नो क्वालिफिकेशन, राइट? तो ऐसे ही नारद मुनि ने कोई एग्जांपल बताएगा मुझे जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, फिर भी नारद मुनि ने उनको वो दी, कृपा की उन पे? कृष्ण प्रभु डाकू रत्नाकर था ना, उनको उन्होंने जपने को बोला तो वो मरा जप रहे थे, फिर उन्होंने बाद में वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि, एग्जैक्टली, वेरी नाइस एग्जांपल। हाँ, तो उसमें कोई गुण नहीं था, राइट? रादर उसमें खतरनाक, वो तो डाकू था, तो उसको उन्होंने दी और वाल्मीकि बन गए। और कोई एग्जांपल? ध्रुव महाराज में कोई गुण नहीं था, he was a materialistic person, वो materialistically he was trying to get the kingdom, क्योंकि उसको उसके फादर की गोद में नहीं बैठने दिया, उन पे उन्होंने कृपा की। और नल, कुबेर और मणिग्रीव हम दामोदर अष्टकम में पढ़ते हैं, राइट? उनमें कोई गुण नहीं था, रादर into the sense enjoyment, उन पे उन्होंने कृपा की। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पे उन्होंने की कृपा, बिना किसी उसके, बिना किसी गुणों के, राइट? सो तो ये क्यों करते हैं कृपा? अब वैसे लिखा तो कॉजलेस मर्सी है, तो इसका कोई वो तो नहीं है, बट स्टिल वो क्या आचार्य टिप्पणी करते हैं इस पे कि जो भक्तगण होते हैं उनका भक्ति कर करके चैंटिंग कर करके हार्ट इतना सॉफ्ट हो चुका होता है दैट दे वांट के, यार नहीं, मैं इसको दे देता हूँ मर्सी। जैसे क्या एग्जांपल है? स्पिरिचुअल मास्टर्स, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जितने भी दीक्षा गुरु हैं, उनको पता है कि मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा तो इसके सारे कर्म मुझे लगेंगे। उनकी तबीयत भी खराब है, जय पताका स्वामी महाराज, कितने कितने सारे महाराज हैं, फिर भी वो क्यों ले रहे हैं शिष्य? क्यों हमारे कर्मा ले रहे हैं वो? बिकॉज दे वांटेड टू गिव अस मर्सी, बिकॉज उनका भक्ति कर करके दिल इतना सॉफ्ट हो चुका है कि वो कहते हैं उनसे देखा नहीं जा रहा कि हम लोग ऐसे सफर कर रहे हैं, वो हमारे कर्मा ले लेते हैं हमें दीक्षा देके, राइट? तो कोई महाराज से पूछ रहा था कि आप इसमें क्या है दीक्षा लेने में, आप बस माला ही देते हो और क्या करते हो? कहते नहीं, महाराज बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, माला नहीं दे रहे हम कहते मैं पर्सनली आई प्रे टू कृष्णा कि मैं इसको अपने साथ भगवत धाम लेके जा सकूं। सो सी महाराज, द मोमेंट यू गेट इनिशिएटेड, you will be in the prayers of your spiritual master. Such a big thing, isn't it? तो अभी प्रोसेस क्या हुआ? नारद मुनि, अब हम we can relate now, right? As we put ourselves in the shoes of नारद मुनि, we can relate. जो नारद मुनि के साथ हुआ, क्या वो हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक जितना बात की है हमने, अहेतु की कृपा मिली, बिना गुण देखे,
उसके बाद थोड़े से गुण देखे तो और कृपा मिली, राइट, इजंट इट? ये दो मिली, उसके बाद क्या हुआ, हमारा फेथ बढ़ा, नारद मुनि का फेथ बढ़ा और उसने फिर गुरुपाद आश्रय लिया. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस. हमें अहेतु की कृपा मिली बिना गुण देखे, फिर हमारे गुण देख के हमें और सर्विस करने का मौका मिला और सर्विसेज मिली हमें, एंड देन सूनर और लेटर वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इनिशिएटेड. तो यहां तक की हमारी जितनी डिस्कशन हुई है, तो वी आर ऑन द पाथ ऑफ नारद मुनि. जितना नारद मुनि का हुआ उतना हमारा भी हुआ. तो इसके बाद जो क्या नारद मुनि के साथ होगा, क्या वो हमारे साथ नहीं होगा? राइट, कॉमन सेंस, वो भी होगा, डेफिनेटली होगा. ऑल वी हैव टू डू इज टू हैव फेथ इन द प्रोसेस. ठीक है, जब नारद मुनि बने हैं, इतने ही प्रोसेस के बाद कॉजलेस मर्सी मिली, फिर डिवोशनल सर्विस करी. वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम. कॉजलेस मर्सी मिली, रेसिप्रोकेटेड सर्विस मिली, वी गेट इनिशिएटेड, वी विल गेट इनिशिएटेड, and then we'll follow that the same path. Now you can see the link, right? All right. Any questions or doubts here? तो ये दो मेन इसके की टेक अवे थे, एक इम्पार्शियल नेचर जिससे कॉजलेस मर्सी, एंड देन टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज जो कि नारद मुनि में थी, बाय which started from speaking less and speaking more, what is required. कृष्ण कथा बोलेंगे तो उससे हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन कम होगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा और अटैचमेंट्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स कम होंगी, राइट? तो प्रभु जी, ये नारद मुनि जो है वो जीव तत्व में आते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली. अभी नहीं, नॉट नाउ. अभी अभी इज एज अ 5-year-old बॉय, यस, ही वाज अ जीवा, conditioned soul. He was a conditioned soul like us in the current context, but now he is not. अब नहीं है, अब वो मुक्त हो चुके हैं. मुक्त होके भौतिक शरीर छोड़ के, भौतिक शरीर उन्होंने, आगे आएगी स्टोरी, तो इसका काफी, ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वो लिबरेट हो गए. उन्होंने बहुत तपस्या की, फिर उनको थोड़ा सा ग्लिम्स मिला, थोड़ी सी ग्लिम्स मिला उनको परमात्मा का. फिर उनको एक ग्लिम्स के बाद उनको इतना ज्यादा उनको कराया कि मेडिटेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उनको बहुत सारे, मतलब इट वाज अ लॉन्ग पाथ ही हैड टू फॉलो, बट दिस इज द बिगिनिंग. सो एंड इसके बाद उनको मुक्ति मिल गई, एंड ही गॉट अ स्पिरिचुअल बॉडी एंड ही वेंट बैक होम, बैक टू गॉड. हाँ, वो मुझे याद है. तो प्रभु जी, नारद मुनि किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के ना? ब्रह्मा जी के, हाँ जी. ब्रह्मा, अगर ब्रह्मा जीव तत्व में आते हैं तो फिर ये भी जीव तत्व में आने चाहिए ना? हाँ हाँ. तो ब्रह्मा कितने हैं हमारे? मिलियंस ऑफ ब्रह्मा है. तो नारद भी कितने हुए? मिलियंस ऑफ नारद हुए. तो हमारे यूनिवर्स का जो ब्रह्मा है वो सबसे छोटा, सबसे चार मुखों वाला ब्रह्मा है, और सबसे छोटा यूनिवर्स है हमारा. ठीक है, जिसको वो ये वाले ब्रह्मा ने बनाया है और जो डील कर रहे हैं. बट देर आर 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं. और ब्रह्मा कौन बन सकता है? और ब्रह्मा इज नॉट द एंड गेम, राइट? ब्रह्मा इज ऑल्सो डिवोटी एंड इज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, राइट? तो if you or me or anyone can do that वर्ण आश्रम धर्म हम 100 लाइफ टाइम्स तक निभाएंगे, we can become ब्रह्मा, राइट? और जब हम ब्रह्मा बनेंगे, then we can directly serve the Lord. तो जब हम सर्व करेंगे, then we'll again go back to Godhead. ब्रह्मा की भी मुक्ति होती है. और कई बार क्या होता है कि there is no candidate, कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है which is qualified to become Brahma. Then Krishna himself becomes Brahma. तो कृष्णा खुद ही ब्रह्मा में एक्सपैंड हो जाते हैं, एंड ही डज ऑल दिस द रिक्वायर्ड नीडफुल, राइट? तो ब्रह्मा इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट पोजीशन. इट इज, एज यू सेड, वो जीव तत्व है. जैसे वी आर सर्विंग, हम अपनी कैपेसिटी में सर्व कर रहे हैं. मंदिर जाके वो आलू काट के, और वो प्याज कह रहा हूँ, आलू और सब्जी काट के, खिचड़ी बना के, ठीक है? तो ब्रह्मा अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, यूनिवर्सेस बना के. So he is also serving, we are also serving. He is serving on a different level, we are serving on a very, very low level. But as he is also pleasing to Krishna, we are also pleasing
trying to please to Krishna. So we'll all go back home, back to Godhead, right? Sure. Right. All right. इस पे चलते हैं 25. उचिष्ट लेपन अनुमिद अन्न अनुमोदितो द्विजः साकृत समभुञ्जे तद अपास्त किल भासा एवं प्रविष्टस्य विशुद्ध चेतसास तद्धर्म एवात्म रुचिर प्रजायते. Only once, by their permission, I took the remnants of their food, and by doing so, my sins were at once eradicated. Thus, being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Anyone wants to read? Pure devotion is as much infectious in a good sense as infectious disease. A pure devotee is clear from all kinds of sins. The personality of Godhead is the purest entity, and unless one is the equally pure from the infection of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord. The Bhakti Vedantas, as above mentioned, were pure devotees, and the boy become infected with their qualities of purity by their association and by eating once the remnants of the foodstuff taken by them. Such remnants may be taken even without permission of the pure devotees. There are sometimes pseudo devotees, and one should be very much cautious about them. There are many things which hinder one of the entities, one from entering devotion service. But by the association of pure devotees, all these obstacles are removed. The neophytes devotees become practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotees, which means attraction for the personality of Godhead's names, fame, qualities, pastime, etc. Infections of the qualities of the pure devotees means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of Godhead. The transcendental taste at once makes all material things distasteful. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendental emotions, and at the last, one can be situated on the plane of loving service of the Lord. All these stages develop by the association of pure devotees, and that is the purpose of this stanza. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Right, again, very, very powerful and important verse, prasadam. Right. So prasadam ko it's not a normal food, right? So prasadam बनता है जब when we offer bhoga and it becomes prasadam. तो जब वो कोई डिवोटी जो प्योर डिवोटी है, तभी उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कि बी अवेयर ऑफ द सूडो डिवोटीज. तो जब प्योर डिवोटी भगवान का खाता है और उसका जो रेमिनेंट बच जाता है, दैट बिकम्स द महाप्रसादम. राइट. सो इफ वी ईट दैट, तो उससे क्या होगा कि जो डिजीज, अगर आप किसी ट्यूबरक्लोसिस का किसी बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसका खाना, आप जूठा खाना खाओगे तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा. तो ऐसे ही अगर एक प्योर डिवोटी का रेमिनेंट्स आप उसका जूठा खाना खाओगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, वही वाली बीमारी हो जाएगी जो उस प्योर डिवोटी को है. वो क्या है? कृष्ण प्रेम. तो क्या बोलते हैं उसमें, गाना था ना उसमें, इसको मलेरिया हुआ, वो कहता लव 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 लवेरिया हुआ, तो हमें
लवेरिया हो जाएगा। तो अगर हम किसी प्योर डिवोटी का रेमिनेंट्स खाएंगे तो हमें भी लवेरिया हो जाएगा, हमें भी सेम चीज हो जाएगी जो वो कर रहे हैं। उनकी हिज क्वालिटीज बेसिकली कम इन टू अस, विच इज नथिंग बट द कृष्ण प्रेमा, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग प्रसादम। अब देर आर 3 इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज कि आपने भोग लगाया प्रसादम, वो प्रसादम बना, आपने वो खाया, अमेजिंग इफेक्ट्स। सेकंड, अब वो जो खाना बनाया है वो भी अगर किसी डिवोटी ने बनाया है, राइट, जो 16 माला कर रहा है और जो एवरीथिंग फॉलोइंग ऑल द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड डूइंग 16 राउंड्स, तो द इफेक्ट बिकम्स डबल। थर्ड, अगर वो डिवोटी ने खा लिया तो दैट बिकम्स महा, तो 3 टाइम्स द पोटेंसी उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी। अब जो प्रसाद बना रहा है उसका, उसकी कॉन्शियसनेस उसमें जा रही है। अब मैं खिचड़ी बनाने जाता हूँ तो वहां पे मैं खिचड़ी बना रहा, तो साथ में अर्जुन सखा प्रभु बना रहे थे, डीटीज के लिए कुक कर रहे थे, तो मैं साथ में, प्रभु थे तो मैं, हम उनसे बात, हम साथ में एक सब्जी काट रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं, तो कोई एडवेंचर पार्क जाने की बात कर रहे थे। तो कुछ मुश्किल से 1-2 मिनट की होगी, अर्जुन सखा प्रभु आ गए, अरे यार तुम आज हमें वो वाली एडवेंचर पार्क वाली खिचड़ी खिलाओगे, वैसी कॉन्शियसनेस वाली, हाँ चलो कीर्तन लगाओ। सो brahmacharis and all those जो जो कि serious devotees हैं, they are very much serious के what they are eating। वो बोलते हैं कि यार मतलब तेल भी कम डालो, मसाले भी कम डालो। जैसे कि ब्रजेश प्रभु ने उस दिन बोल रहे थे ना कि अगर कोई ओलंपिक्स में एथलीट है, वो तैयारी कर रहा है, तो इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज डाइट। ठीक है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, ये जॉन इब्राहिम, ये ऋतिक रोशन, ये अपने क्या, जहां भी जाते हैं अपने वो क्या जिम साथ लेके जाते हैं, अपने शेफ साथ लेके जाते हैं। तो द शेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या शेफ है और वो कैसी कॉन्शियसनेस के साथ खाना बना रहा है। तो ब्रज बिहारी प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि एक एक लेडी थी, तो उसने कहा कि साधुओं को बुलाया घर पे कि आप प्लीज मेरे घर आओ, प्रसादम खाओ। और साधु मान गए कि, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं, ठीक है, दे आर मर्सीफुल। तो दे वेंट देयर और उन्होंने देखा वहां पर उस लेडी ने, ओल्ड लेडी, शी कुक्ड 56 भोग बनाया हुआ था उसने वहां पे। तो दे वर अमेज्ड कि यार ये तो गरीब सी लेडी है, ये पुअर लेडी, हाउ हाउ शी कैन मेक 56 भोग। एनी हाउ दे हैड द प्रसादम, एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस, एंड देन वो चले गए। तो जाते जाते क्या हुआ कि एक उनके शिष्य ने, उसने 2 करछियां अपने बैग में डाल ली, चुरा ली 2 करछियां, और चुरा के वो चल दी। तो रास्ते में जाते जाते फिर उसको कुछ हुआ, तो उसने बोला कि, उसने अपने गुरु को बोला कि गुरु जी ने एक गलती कर ली, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आई डिडंट रियलाइज, बट आई स्टोल दिस 2 स्पून्स फ्रॉम देयर। तो तो कहता मैं वापस करके आता हूँ। तो गुरु महाराज बोले कि ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे, हम साथ चलते हैं। तो गुरु महाराज गए, तो जाके उन्होंने उस लेडी से सीधा पूछा कि तुम मुझे बताओ कि ये खाना तुमने कैसे बनाया है इतना, तो सच सच बताओ। तो लेडी बोलती है कि मैंने ये खाना पैसे चोरी किए थे, किसी अमीर अमीर बंदे से मैंने पैसे चोरी कर लिए, और उससे जाके मैं राशन लेके मैंने खाना बना दिया। तो गुरु महाराज बोले, देखा शिष्य को कि उसकी चोरी की कॉन्शियसनेस का खाना खा के, उसकी कॉन्शियसनेस चोरी वाली थी, तुम्हें अपने आप वो ट्रांसफर हो गई वाया खाना, तो तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने चोरी कर ली। So this is the effect of having prasadam and prasadam from cooked by a devotee। तो हम जब रेस्टोरेंट में अभी तक खा रहे हैं हम लोग ना, वही रेस्टोरेंट में जैसे समोसे ले आए वहाँ स्वीट इंडिया से, ठीक है अनियन गार्लिक नहीं है, बट जलेबी समोसा ये वी ईट आउट, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब रेस्टोरेंट में डाइनिंग करते हैं, बट स्टिल हम ऐसा नहीं है कि प्योरली प्रसादम खा रहे हैं।
राइट. सो व्हाट वी आर डूइंग, जो अग्नि जलाई है उसमें भक्ति की, उसमें ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं. तो क्योंकि वहां पर चाहे अनियन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, चाहे जैसा भी है, बट वी ऑल्सो नीड टू सी द कॉन्शियसनेस कि किस कॉन्शियसनेस से बना है, कि क्या वो डिवोटी ने कुक किया है कि वो किसी और ने कुक किया है. राइट. और भी हम बहुत सारी चीजें जो बाहर की खाते हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस. दैट्स जस्ट वन साइड स्टोरी. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसा खाया अन्न या जिसका खाया अन्न उसका हुआ मन, जैसा अन्न वैसा मन. तो हम अगर अपने बच्चों को अब खुद से कुक करके प्रसादम खिलाएंगे, तो सोचो उनकी कितनी कॉन्शियसनेस वंडरफुल कर रहे हैं हम बच्चों को प्रसादम खिला के, अपने घर का खाना खिला के. इवन ये आनंद वृंदावन प्रभु, उन्होंने एक लेक्चर में बोला था, तो कि उनको उनको बोला कि क्वेश्चन से पूछा था किसी लेडी ने कि मेरे हस्बैंड मीट ईटिंग करते हैं. तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो कि तुम मीट घर पे ही बनाओ. वो डिवोटी थी, तो उसने कहा कि वो बाहर से मीट खाते हैं, घर पे तुम्हें आने नहीं देती. तो आनंद वृंदावन प्रभु बोले कि तुम घर पे बनाओ, 6 महीने तक अपने पति को बाहर का खाना मत खाने दो बस. तो उसने वही किया, और इवन उसने मीट भी कुक किया, बट अपने हाथ से कुक उसने सीखा या जो भी, और उसके बाद उसने खिलाया, एंड उसके हस्बैंड इन द एंड डिवोटी बन गए. तो दिस इज द पावर ऑफ प्रसादम. राइट. मोस्ट ऑफ अस वी नो ऑलरेडी, बट जस्ट ये अब इस वर्ष में आया था. सो दैट इज व्हाई आई थॉट विल डिस्कस दैट. राइट. सो तो और इस्कॉन में तो इस प्रसादम, जब हम पहले होते थे तो प्रसादम क्या होता था, बूंदी बूंदी मिलती थी, बनाना, और या कुछ मीठा थोड़ा सा इतना हाथ में लेके मंदिर से आ जाते थे. जब इस्कॉन में आए तो पता चला कि प्रसादम इज अ बिग फीस्ट, बिग डिनर, बिग लंच. तो प्रभुपाद के वो कचौरियां और प्रभुपाद के वो जो गुलाब जामुन, ये हिप्पीज कैसे बने डिवोटी, ये कचौरियां और गुलाब जामुन खा के बने. वो उन्होंने इतना बड़ा वो रखा होता था गुलाब जामुन का वो पॉट, के खाओ, वो बोलते थे जितने खाने खाओ. तो जो बीच में जो यंगस्टर्स थे वो छोड़ना चाहते भी थे, बट दे कुडंट लीव, बिकॉज वहां पे इतना टेस्टी प्रसादम मिलता था. राइट. तो उनको वो बुलेट्स बोलते थे, बुलेट्स ऑफ इस्कॉन, गुलाब जामुन को, कि जो एक बार खाएगा इट विल किल द माया, किल द माया. So that is the power of prasadam. So we should not undermine it. And and महाप्रसादम का तो क्या कहना, कि महाप्रसादम खा के नारद मुनि became नारद मुनि. Right. All right. So I think we'll stop here, and we'll see if we have any comments or questions. Okay, Prabhuji. Right. सही है फिर. All right then. We'll stop here. Hare Krishna. See you next week. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Please pray for Neve, dedicated to Neve Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji.